session 3, which is very much relatable to you guys, exam preparation, because that is the point where your journey starts. So I would now like to invite the speakers of the session 3, Dr. Asadullah Khan, Dr. Usman Beg, and Dr. Haban Ghani, which has actually matched into the United States in the same program, same hospital as I did. So yeah, we guys will be having a great time in the next 3 years. Please welcome on stage the speakers for session 3. Assalamu alaikum, guys. Assalamu alaikum, guys. My name is Usman Beg. I just passed my final year. Today's session this is about exam preparation. So probably this is the most important session of जो हम आज पूरा सेमिनार करा रहे हैं. Most probably आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेकंड ईयर से फाइनल ईयर को दिखाएंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन फॉर यू. और अगर आप लोग ये एक सेशन सही से सुन लेते हैं तो हमारे सेमिनार का मकसद अचीव हो जाएगा. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने अपने इस जो स्लाइड्स हैं उनको दो में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट ऑफ माय स्लाइड्स इज अबाउट those people who are about to begin their step 1 preparation. ठीक है, right at the verge of their step 1 preparation जो है. So they are about to purchase a question bank, right? वो उन्होंने या U-World लेना है या फिर जो alternate resources हैं, Medicospira है and IMD है, right? तो वो लेने की तरफ सोच रहे होते हैं. So I'm going to discuss about it कि आपने U-World लेना है या alternate resources के साथ आपका काम चल सकता है. So IMD is basically a cheap copy of U-World. जो भी U-World में लिखा हुआ है IMD वालों ने उसको exactly copy paste करके IMD के अंदर डाल दिया. IMD is basically an application जो कि Apple के ऊपर available है, Android के ऊपर available है and Windows में भी available है, right? तो IMD ने क्या किया? These are a group of people जिन्होंने exact U-World का रेप्लिका बनाया और वो बहुत लो कॉस्ट पे दे दिया. एडिशनली जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि U-World के एडिशनल रिसोर्सेज हैं जिसमें U-World की लाइब्रेरी आ जाती है, U-World का फ्लैश कार्ड्स आ जाते हैं. देन देयर इज एमओएस का क्यूबेंट है, एमओएस की लाइब्रेरी है. देन यू हैव अप टू डेट, यू हैव ऑस्मोसिस और फिर जो आपकी यूके की क्लैब और एएमसी की रिसोर्सेज हैं, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल इन द आईएमडी. तो दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ AMD इज कि आप $60 के अंदर पूरे साल के लिए सारी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाती है. कंट्रास्ट दैट विद द U-World जो कि $550 एनुअली है, जिसमें सिर्फ आपको U-World का क्यूबैक मिलता है. ठीक है, तो थिंक अबाउट इट कि यू आर सेविंग ऑलमोस्ट $1,30,000 ₹1,30,000 ऑन दिस अलोन. ठीक है, तो I personally think कि IMD is better, right? अच्छा, now of course, there are some problems with the IMD. This was probably a video which cannot be played. अब आप में से the people who are on the verge of buying a U-World, उन्होंने शायद U-World का जो layout हो देखा हो. IMD's layout, this is basically the picture of the IMD's layout, and it is little different from the U-World. थोड़ा सा broad आता है. Not that it matters, right? The only thing that matters is how to highlight your text. In U-World, you highlight it like any other PDF. You have to just put the cursor over there, press the left click and move the cursor और जो भी आप highlight करोगे वो highlight हो जाएगा. Contrast that with the IMD में आपको जिस तरह फोन में हमें कोई चीज सेलेक्ट करनी होती है ना, we have to long press. ठीक है, तो आपने long press करना है पहले, वो आपको थोड़ा सा highlight होके आएगा, आपने उसको माउस से move करना है जितना highlight करना है. That is probably the biggest con of IMD, क्योंकि आपको एक चीज फेस करनी पड़ेगी. But I think it is worth it for the amount of money you are saving, right? उसके अलावा IMD में अच्छा, especially IMD का जो लॉन्ग प्रेस वाला मसला है, that is only with the Android. आप अगर एप्पल पे यूज कर रहे हैं तो उस पर इशू नहीं आएगा, ये एंड्रॉइड और विंडोज पे इशू आता है. उसके अलावा हर चीज सेम है, आपको मीडिया भी इसमें सब चीजें मिलती हैं. इसमें आपको जिस तरह कटिंग होती है ऑप्शंस की, वो भी सब कुछ मिलता है. आई ट्राई टू प्ले दिस वीडियो, अगर प्ले होती है. नहीं, वीडियो प्ले नहीं हो रही. ऑलराइट, सो अब एग्जाम की प्रिपरेशन जो आपकी स्टेप 1 की है,
the next speaker is going to talk about that in detail कि step 1 की resources क्या हैं, आपने timeline किस तरह रखनी है, house job में किस तरह से prepare करना है. I am going to cater to the students of first year to third year, and I am going to talk about Anki. Anki, आप में से किसी को अंदाजा है what is Anki? कुछ थोड़ा बहुत किसी को भी अंदाजा हो. So I believe so Anki is basically a resource of spaced repetition and active learning. So for you to understand those two concepts is really important, right? What is active learning? तो हम लोग ज्यादातर लर्न कर होते हैं वी आर लर्निंग पैसिवली. हम क्या करते हैं, बुक खोली, बुक के ऊपर हाईलाइट हुआ है उसको हम रीड कर रहे हैं, कोई भी चीज हाईलाइट हुई है, नोट्स बनाए हुए उसको हम रीड कर रहे हैं. दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग. द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग इज एक्टिव लर्निंग. एक्टिव लर्निंग क्या होती है? यू मेक क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को खड़े देखते हो एंड यू ट्राई टू आंसर देम, राइट? जब आप आंसर करने की कोशिश करते हो यू हैव टू प्रोसेस थिंग्स डीपली, you have to make better connections, you have to understand those concepts very deeply to answer the questions correctly, right? तो आपकी deeper processing होती है और आपको फौरन पता लगता है कि if you are correct or wrong. अगर आपको कोई चीज कोई लिखा हो, for example एक certain कोई बीमारी है उसमें कौन सी हमने मेडिसिन देनी है, आपने अगर गलत आपने सोची है तो आपको इमीडिएट फीडबैक आपको पता लग जाता है कि आपने गलत सोची है. कंट्रास्ट दैट विद द पैसिव लर्निंग. आप बुक में पढ़ रहे हो कि फलाने उसमें ये दवाई देते हैं, आपको कभी पता नहीं लगता कि आपको चीज याद है नहीं याद. तो आपकी साथ साथ आप इमीडिएट फीडबैक हो रहा होता है, सेल्फ असेसमेंट आपकी हो रही होती है और आप एक डीपर लेवल पे जाके एंगेज कर रहे होते हैं, राइट? सो that is active learning and you should start doing active learning. Next concept that I'm going to talk about is spaced repetition. So this is a graph of spaced repetition. When you learn something, you will forget 50% of that in just one day alone, right? So you have to revise that within 24 hours to take that 100%. Then you'll forget it a little slowly, but you have to then revise it in 4 days. And then gradually, as you keep revising the things, the concepts linger on in your brain for longer. So this is the concept of space repetition. Now, what Anki does is Anki combines these two concepts, the active learning and the space repetition. Right? If you have flashcards with yourself, you will have to plan everything about the space repetition के अब मेरा ये कार्ड हो गया है, इसको 4 दिन बाद करना है या 6 दिन बाद करना है, 10 दिन बाद करना है. But actually you don't have that problem. ठीक है? You have the luxury of just opening your laptop और आप उस फैन की खोली और वो करना शुरू कर दी. फॉर जो लोग चाहते हैं फॉर द डिटेल्ड गाइडेंस ऑन द एंकी, तो वी हैव अ चैनल ऑन द यूट्यूब, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिसर्च. वहां पे इसमें हमने एक डिटेल्ड सेमिनार कराया था ऑफ प्रोबेबली 5 to 6 आवर्स. उसकी रिकॉर्डिंग वहां पे अवेलेबल है. तो वो ओवर देयर उसमें हमने बिल्कुल नेटिव से एक्सप्लेन किया किस तरह आपने उसको यूज करना है. यहाँ पे हम जस्ट गोइंग टू गो ओवर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एंकी के हैं. कि एक तो आपको प्लान नहीं करना पड़ता कुछ, ठीक है? इजी लर्निंग है. आप आए, एंकी ने सब कुछ आपके लिए प्लान किया हुआ है, क्या चीज आपने पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी, राइट? अच्छा, अब एंकी के अंदर 28,000 कार्ड्स हैं, 28,000 फ्लैश कार्ड्स है जो आपने करना है. दैट माइट साउंड अ लॉट, ठीक है, फॉर स्पेशली फर्स्ट से थर्ड ईयर जो उनको लगेगा बहुत ज्यादा है. बट थिंक अबाउट इट कि अच्छा अक्सर ओवरवेलम हो जाते हैं हम. इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में और हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत ज्यादा होता है कि आई मीन वी डाउट आवरसेल्व्स कि इफ वी आर गोइंग टू मेक इट और नॉट, कि हम स्टेप वन कर पाएंगे नहीं, पता नहीं मेरा प्रॉफ पास होगा कि नहीं, पता नहीं आई एम गोइंग टू बिकम अ गुड डॉक्टर और नॉट. तो दिस इज द इम्पोस्टर सिंड्रोम, राइट? तो व्हाट एंटी डज इज कि वो स्प्लिट कर देती है सारी चीजों को थोड़ी थोड़ी. आप ग्रेजुअली करें. 28,000 कार्ड्स हैं, फर्स्ट ईयर से आप स्टार्ट करें, डेली 100 cards or 50 cards करें. Think about it, if you do only 100 cards, right? तो 28,000 cards हैं, step 1 step 2 दोनों के मिला. You do 100 cards daily, आपके 280 days में पूरी एंकी फिनिश हो जाएगी and you're good to give your exam, right? Step 1 भी step 2 भी. और if you go on to the forums on the Reddit या फिर दूसरे जो forums हैं, you'll realize कि एंकी is the gold standard for step. जो लोग step में एंकी यूज करते हैं they don't score low, they score really high.
तो अगर आप एंकी करते तो फॉरगेट अबाउट स्कोरिंग लो, ठीक है। 28,000 कार्ड्स, आप 100 कार्ड्स डेली करते हैं, एक साल के अंदर आप आराम से उनको फिनिश कर सकते हैं। तो फिर 50 कार्ड्स डेली, तब भी आप 2 सालों में कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप आए हैं, आप एंकी करना शुरू करते हैं, आप सेकंड ईयर में आप आए हैं, आप एंकी करना शुरू करते हैं, आप थर्ड ईयर तक प्रिपेयर्ड होंगे फॉर टेकिंग योर स्टेप वन। इन द एंड ऑफ थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टार्ट में आप अपना स्टेप वन दें, उसके बाद स्टेप टू की आप एंकी करें, स्टेप टू चलोगे, राइट। तो this is how Anki helps you. Anki helps you break down your journey into a relatively longer period. And it is not just about scoring good in exams. आपको exams के अलावा it helps you become a better doctor. It helps you retain knowledge for longer. It helps you gain your concepts at a deeper level. जब आप active learning कर रहे होते हैं, आपने एक concept पढ़ा, आपने एक question पढ़ा, आपको उसका आंसर नहीं आया, you're going to go to the Google, you're going to search about it, you're going to learn it. उसके अलावा जो एंटी का सबसे बड़ा फायदा है, दैट इज आई एम गोइंग टू इन्यूमरेट द स्टेप वन रिसोर्सेज, ठीक है। और आई डोंट नो कि हम में से किसी ने भी वो सारी रिसोर्सेज यूज की। सबसे पहले यूवर्ल्ड है, देन एम्बॉस है, फिर फर्स्ट एड है, तो उसके बाद फिजियो है, ऑस्मोसिस है, परफॉर्मा है, बीएनबी है, स्केची है, राइट। ऑलमोस्ट 8 रिसोर्सेज है, और हमें से कोई भी 8 रिसोर्सेज नहीं करता, क्योंकि इट्स टू मच। एंटी क्या करती है कि एंटी ये 8 रिसोर्सेज से बनी हुई है, राइट। और जहां पे वो चीजें ओवरलैप हो रही होती हैं, उससे सिंगल कार्ड होता है। तो यू आर बेसिकली डूइंग ऑल 8 रिसोर्सेज, और आपको एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी 8 रिसोर्सेज की, आपको जस्ट 8 रिसोर्सेज थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ी। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एंटी। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ना, प्लीज प्लीज स्टार्ट डूइंग एंकी। एंकी आपकी जर्नी को चेंज कर देगा। मैं एंकी सेकंड ईयर में स्टार्ट की, एंड आई वाज लकी कि मुझे कहीं से गाइडेंस मिल गया, स्टार्टेड डूइंग एंकी। मेरा स्टेप वन बहुत इजीली निकला, मेरी स्टेप वन की प्रिपरेशन बहुत अर्ली हो गई थी, मेरे स्कोर्स बहुत अच्छे आ रहे थे स्टेप वन के अंदर। अनफॉर्चुनेटली वो पास फेल है, तो इट डजंट रिफ्लेक्ट ऑन द रिजल्ट, बट जितना मुझे मेंटल पीस था व्हाइल टेकिंग माय स्टेप वन, व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर स्टेप वन, जस्ट बिकॉज ऑफ एंकी कि मैंने एक बार एंकी की हुई थी, मुझे यूवर्ल्ड बहुत इजी लगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। एंकी को आप लोग कोशिश करें कि आप सब लोग इंकलकेट करें, एंड वी हैव अ सेशन ऑन द एंकी जो कि अपलोडेड है ऑन द यूट्यूब। सो आप यूजिंग साइट ऑफ रिसर्च के यूट्यूब चैनल है, उससे पर जाएं, एंकी को डाउनलोड करें और एंकी को यूज करना स्टार्ट करें। दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू जो कि फर्स्ट से थर्ड ईयर है। लास्ट थिंग इज कि आप लोगों का मॉड्यूलर सिस्टम है जो फर्स्ट से थर्ड ईयर। So you have to study pathology, you have to study medicine as well. तो वो दो चीजें जूनियर्स आस्क मी कि मुझे पैथोलॉजी कहाँ से पढ़नी है, मेडिसिन कहाँ से पढ़नी है, एंड ऑफ कोर्स दे कैन नॉट रीड ड्रॉपिंग्स एंड लेवल्स फॉर दैट। सो एनजी के अंदर वो आपके पैथोलॉजी और रेलेवेंट जो फिजियोलॉजी के कार्ड होते हैं वो के साथ इसी 28,000 के अंदर है। इफ यू डू अ सिस्टम ऑफ कार्डियो, कार्डियो के ऑलमोस्ट 700 कार्ड्स होंगे, जस्ट इफ यू डू दोस कार्ड्स, यू आर गुड टू गो विद योर फिजियोलॉजी, विद योर एनाटॉमी, विद योर पैथोलॉजी एंड विद योर मेडिसिन। This is how this is going to, this is how the NT is going to change your journey. तो इसको जरूर इंडिकेट करना स्टार्ट करें। थैंक यू। One by go. All right, I'm going to give mic to Dr. Asila Khan now. He'll guide you about step one, education greenhouse software. Yeah, sir. Assalamu alaikum. I am Dr. Asadullah Khan. I am currently doing my house job in this hospital. So I passed my step one last month, and I started my preparations just for the house job last year. So I will be talking about my journey, and it will be important if you are in final year or you are just starting your house job. So first of all, I would like to talk about the resources that I used for the step one. So first one is first one is first aid. As Dr. Ahmed Farooq already told about you, first aid is the most important resource for the step one. It has all the information that you require for the step one.
It is a concise book, but precisely written. So if you have a good grip on first aid, you are good to go. You need multiple revisions to retain the knowledge that is given it. It is a bit dry book because every page is very important. So you need to understand what is written in the first aid and you need to do multiple revisions to retain the knowledge. It is the most important, single most important resource for the step one. Next is UWorld. So knowing the information is one thing, but how to utilize the information that is given in the first aid is a different thing. So you will know from the UWorld how to utilize the information that is given in the first aid. So basically UWorld is a question bank. There are almost, I think, 3,700 or 3,800 questions in it. So UWorld has explained everything very beautifully. There are explanations for all the questions, why this option is correct, while other options are incorrect. So we'll find extensive details about all the options. So it is a very good testing. Most importantly, it is a learning tool. So if you are doing the UWorld effectively, it will help you a lot. In fact, first aid and UWorld are the two most important resources. If you do both effectively, you are good to go. You can excel your step one exam. Third resource. So video lectures are not mandatory. You can skip it. These are the helping resources. You can use it as I have written in it. These are not mandatory, but if you have weak baseline knowledge or concepts, or you don't like to read extensive books, you can use video lectures. It will help you build the concepts, retain the knowledge, and understand what is written in the first aid. The most important video resources are, I have listed all this. So if you talk about the video lectures, the first thing that comes in mind is the BNB. So BNB are the most important video lectures that you can use for the step one. There are other options as well, like Pathoma. You can use Pathoma for special pathology. Sketchy is very important for microbiology. If you have done sketchy flashcards, your microbiology will be very excellent. There are other YouTube videos like Randy Neal Dirty Medicine. You can use them as well. So these are not mandatory, but you can use it. Or if you don't want to listen all the lectures, you can use videos for the weaker areas. If you find difficulty in a specific system or in a specific subject, like if you are in final year or doing house job, you will be finding difficulty in doing anatomy, physiology, biochemistry. So you can use video lectures for those. So this point, I think it is not talked much, but importance of MBBS knowledge. It is very important. You can use, I think you should use recommended books, especially if you are not sure which exam you want to give in future. You are confused in different options. You should read recommended books during MBBS knowledge, during MBBS period. I was not sure which exam I will be giving in future. So the thing I was sure that I am doing MBBS and I should do it effectively. So throughout my journey, I read all the recommended books from the first year till final year. So I had distinctions as well and positions during my MBBS journey. So this point really helped me. Sorry. So when I started my preparations before house job, so MBBS knowledge really helped me. There are few subjects which I found difficult, like biochemistry, anatomy, and all the clinical subjects. I had a very good grip just because I used good resource during the MBBS. So I really recommend you, if you are in first year, second year, third year, and you are not sure which exam you will be giving in future, you should be reading recommended books. So now, if you are in final year doing just starting your house job and you are planning to give your exam, there are few things that you need to keep in your mind. So if you have a question whether you should go for the house job or not, I think not doing house job is not a good idea because house job is for 1 year and it will be a big gap in your CV. So skipping the house job is really not a good idea. If you are beginning your journey, you should do your house job. Second thing is you can do complete house job as I did, or you can do house job with locum. Professors are not here, so I can talk about it more freely about locums.
So locum is a thing you can pay someone else to do your duty. For example, if you have an emergency duty today, you can pay your fellow HO to do your duty. So in this way, you can buy some time to prepare for your exam. So it is a good option. Instead of skipping the whole house job, you can use locums during tough rotations like medicine, surgery. Because medicine, surgery are hectic rotations, they are emergency duties, ward calls. So you can do few duties, you can use locum. So it is a good option. So if you don't know about the house job rotations, house job rotations, there are basically 4 rotations, 3 months each. So house job is for 1 year. Medicine, medicine allied, surgery, and surgery allied. I have listed all the allied rotations from easy to most difficult ones. So I have listed psychiatry on the top because it is the most easy rotation for medicine allied. I did psychiatry, and in surgery allied, the most easy rotations are the ENT, neurosurgery, plastic surgery, and so on. I have listed peds and gynae at the end because these are the most difficult rotations if you are preparing for your exam. If you are not preparing your exam, I think you should do both rotations, peds and gynae, because you will learn a lot in these rotations. So if you are planning to give your exam during house job, you need to understand which rotation you should pick. It all depends on your timeline when you will be giving your exam during house job or immediately after the house job. So in this way, you need to plan the sequence of your house job rotations. For me, I started my preparations just before the house job. So I did my first rotation in medicine, allied psychiatry. So in this way, I got 4.5 months to prepare for the exam. And it set a good tempo for me. I covered most of the things during this period. Then I did medicine and surgery rotations. These are the hectic rotations. And then I did my step one during at the beginning of fourth rotation, that is ENT. So I covered most of things during the first rotation and then medicine and surgery. These were the hectic rotations. I did very little in these rotations. And I was doing all the duties by myself. I didn't use any locum. So I think locum is a good option and I think you can utilize it. So, few things that you need to keep in your mind before starting your journey. When you are starting your journey, you should lay out a plan in front of you. When you will be doing your step one, when you will be giving your exam, whether it is in the during the rotation or immediately after the house job. And you need to target the allied rotations because these are the easy rotations. Easy rotations in a sense because in allied rotations you don't have to do the emergency duties. Ward calls are a little low, a little less, and in this way you can maintain a schedule during the allied rotations. You can prepare it well. So always look for the allied rotation set in a sequence when you want to give the exam. If you want to give the exam during the house job, combine two allied rotations. In this way you get the 6 months to give your exam. So if you want to give the exam immediately after the house job, then you should be looking for the allied rotation as a fourth rotation. In this way, you get the 3 to 4 months gap to prepare your exam. So during the tough rotations, medicine and surgery are the tough rotations. If you are doing peds and gynae, these are tough rotations as well. In these rotations, you will be doing emergency duties, ward calls, OPDs, morning stations. So I think you should keep the easy subjects, easy systems for the tough rotations because there will always be a distraction while you are working in medicine and surgery. So you should keep the easy stuff for the tough rotations, and you need to utilize these rotations very smartly. Plan things. You know your house job roster before starting a month, so divide this roster into easy and tough days. During tough days, you can do much. So use revision tools during these tough days, and during easy days, you can do the tough stuff. Be flexible in your approach, especially during the tough rotations like medicine, surgery periods. You need to make realistic plans. Be flexible. You should study whenever you find the time because during these rotations you will be doing the duties at night in the morning. So you will you will not be having a specific schedule that I will be studying these few hours. You need to study whenever you find the time. There will be days when you will be doing the twice the work and there will be days when you will be doing nothing. So you need to be flexible in your approach during the tough rotations or tough days.
And last thing is motivation. You are doing house job and you are doing the house job and you are preparing for a competitive exam. These are two different things and both are challenging. Both things have their own challenges. So you should be mentally prepared for it. It is a very long journey during doing a job, and it will be the first time that you will be doing a job. So it will be a long, hectic, emotional draining journey. Be patient, consistent, and be slow but steady. Then you will win the race definitely. Thank you so much. So नेक्स्ट स्पीकर बुलाने से पहले मैं कुछ थोड़ी सारी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ डॉक्टर हबान गनी बैच ऑफ 2019 हमारे बहुत सीनियर है बट हबान गनी का सबसे ज्यादा स्कोर है हम सब में से राइट नाउ गॉट 270 so that's actually in the top 5% of the United States graduates पीछे जो हमारी बातें हुई limitations and why it should be USMLE and all that kind of stuff that might or might not be relatable to you लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है तो एग्जाम प्रिपरेशन से स्टार्ट करना है स्टेप 1 से स्टार्ट करना है तो मैं हवान भाई को बुलाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उर्दू में बोले इफ पॉसिबल ताकि बच्चों को ज्यादा अच्छी समझ ठीक है आवाज आ रही है? अच्छा, अहमद भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया है। मैं भी इनके अहमद भाई के प्रोग्राम में मैच हुआ हूँ और आई वाज लकी इनफ टू गेट हाई स्कोर्स एंड मैच इनटू द अहमद साउथ ईस्ट जॉर्जिया प्रोग्राम। Before starting my presentation, I would like to suggest you to please prep step 1 really well. मुझे लगता है कि स्टेप 2 और स्टेप 3 में और इन दोनों एग्जाम्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा फायदा मिला था वो ये कि मेरी स्टेप 1 की प्रेप बहुत अच्छी थी एंड although I did it in pass fail system and I did pass but I was getting my assessments in like 258 to 60s, so that was really a positive point for me कि स्टेप 1 की प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि उसका स्टेप 2 और स्टेप 3 में बहुत ज़्यादा फायदा हो गया था। So I will be going quickly through step 2, step 3, the resources, timeline, and strategies. For step 2, I would suggest you to just focus on UWorld. UWorld is the only thing for step 2 to get you high enough marks. स्टेप 2 सीके में यूवर्ल्ड जो है वो ऑलमोस्ट 90 to 95% एग्जाम कंटेंट आपका कवर कर देता है और इसके अलावा कुछ 5 to 10% और चीजें वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा एंड यूवर्ल्ड जो स्टेप 2 का है वो स्टेप 1 से बहुत ज्यादा ओवरलैप भी करता है तो स्टेप 1 का यूवर्ल्ड करना और स्टेप 1 का अच्छा करना आपको स्टेप 2 के यूवर्ल्ड में बहुत फायदा देगा और द बिगेस्ट बेनिफिट वुड बी कि आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा आपको यूवर्ल्ड स्टेप 2 करते हुए ज्यादा ही लग रहा होगा कि ये ऑलमोस्ट स्टेप 1 यूवर्ल्ड वाले क्वेश्चंस हैं जिनका हम कॉन्सेप्ट आगे वो कर रहे हैं मतलब वो एग्जाम में यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें वो डिप्लॉय कर रहे हैं। स्टेप 2 सीके की जो असेसमेंट्स हैं उनमें जो नंबर 1 असेसमेंट है जो आपको देनी चाहिए वो एनबीएमई है। वाई आई एम सेइंग एनबीएमई ओवर यूबर्ट असेसमेंट बिकॉज एनबीएमई जो है वो रियल एग्जाम के से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। You get to know the mind of the examiners and you know the strategies to do the exam and you have to do the time management as well in NBMs. So they are the most like real deal to the exam and they will actually predict your score as well. There are some topics like in step 1, step 2, step 3. जो बेसिकली स्टूडेंट्स को भी सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं उनमें जो एक नंबर 1 चीज है वो बायोस्टैट्स है। तो बायोस्टैट्स के लिए आई डिड ओनली रैंडी नील बायोस्टैट वीडियोस on YouTube and there I have done pretty well in biostats in all 3 steps. So I would suggest कि सारी वीडियोस अच्छी तरह की रैंडी नील की जो है YouTube पे देखें and then do the blocks of the UWorld. You will actually see कि अगर आप रैंडी नील की वीडियोस देख लेंगे बायोस्टैट्स की
यूट्यूब पर, तो उसके बाद जब आप क्वेश्चन बैंक का जो यूवर्ड का करेंगे ब्लॉग सोल्व, तो आपका मार्क्स सिग्निफिकेंटली हायर आएंगे कंपेयर टू कि अगर आपने नहीं रैंडी की वीडियो देखी। बेसिकली सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन रैंडी ने उन्हें इतनी आसानी से समझाया हुआ है कि आप अपना एग्जाम जो है वो बहुत आसानी से टाइम सेव कर सकते हैं बायोस्टैट्स में। तो आई वुड रियली सजेस्ट के रैंडी की वीडियोस देखें, उसके बाद बायोस्टैट्स वाले यूवर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करें। The next resource for step 2 would be emboss. Emboss जो है वो कुछ चीज़ों में फायदेमंद है तीनों स्टेप्स की। में नंबर 1 ये कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट यूवर्ड से समझ नहीं आ रहा, तो emboss really helps you in that. They basically have different topics और उन्हीं टॉपिक्स पे आप साथ ही उसका क्वेश्चन बैंक कर लेते हो। तो उन टॉपिक्स का, तो उससे आपका वो वाला टॉपिक बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। और एम्बॉस की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, तो इसमें से कोई भी जो टॉपिक है वो आप, अगर आपने ज्यादा एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करना है वो भी कर सकते हो। अगर उसमें से सिर्फ हाई यील्ड देखनी है पॉइंट्स, तो वो भी एम्बॉस में एक ऑप्शन है कि आप सिर्फ उसमें से हाई यील्ड को टिक करो और उसमें से सिर्फ हाई यील्ड पॉइंट्स को, इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम। The other things you want to do from Emboss is ethics and communication questions. Recently step 2 में भी, step 3 में भी और even step 1 में भी जो एग्जाम का proportion है ethics और communication questions वाला ये बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया है। And people really find it difficult, even I was finding it difficult कि उनके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आपस में ना मैच कर रहे होते हैं। यू मतलब आप क्वेश्चन देखते हो, आपको लगता है कि ये 2 या 3 ऑप्शन तो ऐसे ठीक हैं और आपको पेशेंट को यही कहना चाहिए। तो एम्बॉस में जो एथिक्स और कम्युनिकेशन साइंस का सेक्शन है वो दैट इज रियली गुड, और दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन दैट सेक्शन। और आई वुड से कि फोकस इन दीज 2 टॉपिक्स, बिकॉज मार्क्स जो 250 से 260 और 270 में जा रहे होते हैं, उनमें जो एक मेजर हर्डल होती है ये कि जो बेसिकली जिनमें लोग लूज कर देते पॉइंट्स, वो ये 3 टॉपिक्स हैं, एथिक्स, कम्युनिकेशन साइंसेज एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ये 3 आपने जो टॉपिक्स हैं ये एम्बॉस से भी करने हैं, यूवर्ड से भी करने हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई सोर्स इन तीनों टॉपिक्स के लिए मिलता है तो ये आपने जरूर करना है। इसके बाद एक्स्ट्राज हैं। यूवर स्टेप 2 सीखे की प्रेप में एज सच एक्स्ट्रा की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन डेफिशिएंट इन सम एरिया, तो आई वुड सजेस्ट यू वुड डू सीएमएस फॉर्म। सीएमएस फॉर्म्स आर बेसिकली ना क्लिनिकल मास्टरी सीरीज फॉर्म्स हैं। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट वाइज है, इनमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, पीड्स, गायनी, सर्जरी, मेड। तो मिसाल के तौर पे अगर आप साइकेट्री में वीक है या मेडिसिन में वीक है, तो आप ये वाले फॉर्म्स फिल करें। ये दे आर एक्चुअली रियली क्लोज टू द एग्जाम डेट। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वो और एग्जामिनर का माइंडसेट है वो आप इन फॉर्म से काफी अच्छी तरह समझ सकते हैं। डिवाइन इंटरव्यू पॉडकास्ट इज अनदर सोर्स। इसमें जो इसमें से जो करने वाली चीजें हैं ना जो मैंने की थी, उसमें एक रिस्क फैक्टर्स हैं और प्रोग्नोसिस है, साइड क्या कहते हैं डिजीजेस के ना रिस्क फैक्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है जिसमें पेशेंट जो एग्जामिनिंग पॉइंट यूज करते हैं वो ये कि एक डिजीज है जिस तरह कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो उसमें मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर हैं, बट द एग्जाम समटाइम्स से दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन दिस डिजीज। तो हमने रिस्क फैक्टर सारों ने याद किए होते हैं, लेकिन बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर आगे पॉइंट लूज हो जाता है कि हमें ये नहीं पता था मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। मिसाल के तौर पर वो अब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म का देगा क्वेश्चन और आपसे मुख्तलिफ चीजें बता देगा कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो वो होगा बेसिकली स्मोकिंग, और मेल जो जेंडर है बेसिकली 65 to 75। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर पे ध्यान देना और साथ बाकी पढ़ने आपने। डर्टी मेडिसिन जो है ये यूट्यूब पे वीडियो चैनल है, और आई डिड गेट हेल्प फ्रॉम इट फ्रॉम फॉर सर्टेन टॉपिक्स। ये बेसिकली बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा इजी करके बता देता है, और रिमेंबर मतलब आपको निमोनिक्स दे देता है। स्टेप 2 सीपी की प्रेप में मुझे जो ज्यादा फायदा मिला था वो इसमें साइकेट्री की प्रेप में मिला था, और एथिक्स और कम्युनिकेशन साइंसेज, इनमें इसकी वीडियोस का बहुत ज्यादा फायदा मिला था। अच्छा, कमिंग बैक टू यूवर्ल्ड। यूवर्ल्ड आपने ना सबसे पहले ये देखना कि यूवर्ल्ड लर्निंग टूल है, इट्स नॉट योर असेसमेंट टूल। आप स्टार्ट में यूवर्ल्ड शुरू करेंगे तो आपके स्कोर्स कम आने शुरू होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने जब यूवर्ल्ड शुरू किया था तो मेरे स्कोर्स 40% 50% आज में आ रहे थे, मतलब मेरे हाफ ऑफ द क्वेश्चन ब्लॉक्स में गलत हो रहे थे। तो उस पर आपने ज्यादा मतलब वो नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी कि हम इसमें कम आए तो फाइनल भी कम आएंगे।
It's just a learning tool. Try to understand the concept behind the question. बेसिकली यूवर्ड में जब एक क्वेश्चन आता है उसके साथ 5 ऑप्शन आते हैं, तो आप जो क्वेश्चन है वो तो आपने ठीक कर लिया या गलत कर लिया, जो उसके साथ 4 और ऑप्शन आ रहे होते हैं वो 4 और क्वेश्चंस हैं जो ये बताते हैं कि आप वो वाला ऑप्शन क्यों नहीं था और जो मैंने राइट किया वो वाला ऑप्शन क्यों था। तो यूवर्ड के अंदर से जो आपने जो उसकी जो आपने ये देखना कि मैंने गलत क्यों किया कोई आंसर ये क्वेश्चन, और अगर कोई गलत किया तो सही आंसर क्या था, जो मैंने गलत किया उसमें मेरी थिंकिंग क्या थी, और क्वेश्चन क्या जो कॉन्सेप्ट है उसकी थिंकिंग क्या है। आई वुड से कि यूवर्ड आपको टाइम मोड में करना चाहिए, इसलिए कि ये आप जब 1 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं तो आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रेप शुरू से ही होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑलमोस्ट 80 सेकंड्स चाहिए आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड वन ऑफ द थिंग दैट आई वाज फाइंडिंग डिफिकल्ट इन डूइंग माय एक्चुअल एग्जाम वाज टाइम मैनेजमेंट। So do it in time mode. It actually helps you prepare well for the exam on the actual exam day. सिस्टम वाइज करने का फायदा ये है कि आप एक सिस्टम बहुत अच्छी तरह कर लेते हो, तो एक मिसाल के तौर पे आप कार्डियोलॉजी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेते हो, तो जब आप इस तरह सिस्टम वाइज चल रहे होते हो तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि मेरा सिस्टम कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। मिसाल के तौर पे मेरा बेसिकली साइकेट्री और एथिक्स और कम्युनिकेशन साइंस वीक आ रहा था, तो मुझे ये समझ लगी थी कि इन 2 चीजों के लिए मैंने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज करने हैं, तो मैंने साइकेट्री के लिए डर्टी मेडिसिन यूज कर ली और एथिक्स और कम्युनिकेशन साइंस के लिए एम्बॉस यूज कर लिया। सेकंड पास आई वुड नॉट से इट इज नेसेसरी, बिकॉज आप जब एक बार यूवर्ड अच्छी तरह कर लेते हो ना, आपको क्वेश्चन याद हो जाते हैं कि मैंने क्यों गलत किया था क्यों ठीक किया था, तो जस्ट डू द रॉन्ग और फ्लैग क्वेश्चंस एंड डोंट डू इट फॉर द सेकंड टाइम, आई वुड एडवाइज। NTN will be ME, as I already said, they are really identical to the exam team. They would help you identify your weak areas, और आपका एनबीएमबी में जितना स्कोर्स आ रहा है आपका एक्चुअल में भी ऑलमोस्ट उतना ही आना है, और एनबीएमबी में जो शो कर रहा है कि आपके वीक एरियाज ही हैं, आपके एक्चुअल एग्जाम में भी वही वीक एरियाज होंगे मोस्ट लाइकली। तो एनबीएमबी रियली वेल करना है, ऑलमोस्ट सारे आई वुड सजेस्ट के सारे एनबीएमबीज करें और डू इट ऑनलाइन, और उसमें देखें कि आप किस चीज में कम आपके स्कोर्स कम आ रहे हैं, उस एरिया को इम्प्रूव करें। यूबर्ट सेल्फ असेसमेंट आई वुड से कि एग्जाम से तो नहीं क्लोज होती, लेकिन ये आपका स्कोर अच्छा प्रिडिक्ट कर देती है, इसके आसपास ही आपका स्कोर आता है विद इन 8 to 10 पॉइंट, स्पेशली यूबर्ट सेल्फ असेसमेंट टू। एंड बॉस आई ऑलरेडी सेड एक्स्ट्रा प्रेप फॉर बायोस्टैट एंड एथिक्स। आई वुड जस्ट लाइक डू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि अगर मैंने किया था स्टेप 2 सीखे 6 मंथ्स में, तो जो आइडियल टाइमलाइन है, अगर आपकी स्टेप 1 की प्रेप बहुत अच्छी है तो इससे कम टाइम में भी हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप 40 क्वेश्चंस भी यूवर्ल्ड में कर रहे हैं तो देयर आर मोर देन 4000 क्वेश्चंस, तो आपका ऑलमोस्ट ये 4 मंथ्स इसको लग जाएंगे यूवर्ल्ड को, और आपने जब ये यूवर्ल्ड कंप्लीट कर लेना है तो उसके बाद अपनी सेल्फ असेसमेंट शुरू कर देनी फॉरन। कुछ एक दो गलतियां जो लोग करते हैं वो ये कि एनबीएमबी और यूवर्ल्ड सेल्फ असेसमेंट ना बिल्कुल एंड पे रख लेते हैं, मिसाल के तौर पे लास्ट मंथ में हमने ये असेसमेंट शुरू करनी है, ये वाली गलती नहीं करनी। इसका नुकसान ये होता है कि आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि मेरे वीक एरियाज कौन है, मैंने किस एरियाज में इंप्रूवमेंट करना है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। तो ट्राई टू स्टार्ट असेसमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी सेट के यूवर्ड को आप टाइम मोड पे करें, टाइम मोड में करेंगे तो आप एग्जाम में आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं खराब होगी, आप बिल्कुल अपना टाइम पे और टाइम से पहले भी इवन एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं। जो सबसे लास्ट पे असेसमेंट देनी है ना, वो आपने 3120 देनी है। 3120 जो असेसमेंट है ये बेसिकली आप गूगल के 3120 यूवर्ड स्टेप 2 सीखते हैं तो ये एनपीएमबी की तरफ से 3 ब्लॉक्स होते हैं, और आपने लास्ट में 2 से 3 डेज में कंप्लीट करनी है, और इसमें आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम स्ट्रेटजीज हैं यूवर्ड सॉरी स्टेप 2 सीखे की, इनमें ये सबसे नंबर 1 स्ट्रेटजी है कि ड्रग एड सबसे एंड में करने हैं। These are really they really take your time, like 5 minutes एक ड्रग एड के क्वेश्चन पे लग जाते हैं, और you have like 1 to 2 minutes for each question. So don't do it on the expenses for the question. ड्रग एड एंड में करने हैं, और अगर आपको टाइम मिलता है तो करें, और अगर नहीं मिलता तो आपने एटलीस्ट तुक्का तो जरूर लगाना है, मतलब ये नहीं कि खाली छोड़ के आना है, वो आपका नेगेटिव है।
एक और जो यूबर्ट स्टेप 2 सीखे और स्टेप 3 में चीज आ रही है कि जो उन्होंने क्वेश्चन स्टेम है वो बहुत ज्यादा बड़ा करना शुरू कर दिया है। मतलब मिसाल के तौर पे एक पूरे पेज का क्वेश्चन स्टेम होता है, जो आखिर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा होता है वो बिल्कुल एक सिंपल सी बात होती है, और आपने 1-1.5 मिनट पूरा क्वेश्चन पढ़ने में लगा दिया होता है, तो आपको ये नहीं पता चलता कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन कौन सा पूछना है। तो आई वुड से कि रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट, इस तरह आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली एग्जामिनर ने जो मुझे सारा डाटा दिया है क्वेश्चन का उसमें से पूछना क्या है। तो आप उसी माइंडसेट से अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, बजाय इसके कि आप सारा क्वेश्चन पढ़ें और दोबारा फिर लास्ट लाइन पढ़ेंगे उससे पूछा क्या है, और उसके बाद दोबारा फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, अब दोबारा से हम स्किम थ्रू करेंगे। एग्जाम में ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन ना एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जो स्टेप 2 में भी, स्टेप 3 में भी, स्टेप 1 में भी। तो कोई ब्लॉक आपका बुरा गुजर जाए तो उसमें पैनिक भी होना, दे आर मोस्ट लाइकली एक्सपेरिमेंटल। और ट्राई टू जस्ट कीप काम और पेस करना, और अपने आप को उसको देर से निकाल के आगे आपने चलते रहना है, मतलब उसी पे नहीं फोकस करते रहना कि मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया है। वेग और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मोस्ट लाइकली एक्सपेरिमेंटल होते हैं। I will just do a quick overview. The OET exam basically it is required for the ECFMG certification. सिंपल एग्जाम है, मेडिकल उसमें कंटेंट है, उसमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कंटेंट नहीं है, और 1 to 2 week prep is enough. I did only 1 week prep for this exam, और 4 sections है इसके: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो 70% या 75% इसकी पास रेशियो है, जो इसके सेक्शन जो आपको ज्यादा तंग करेंगे वो बेसिकली स्पीकिंग और राइटिंग है। तो स्पीकिंग का जो बेहतरीन हल है वो ये कि आपने रोल प्ले सिमुलेट करना अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग साथ। एग्जाम से कुछ दिन पहले आपने शुरू कर देना है, एक केस सिनेरियो लेना है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपने उसको आंसर देने हैं। एग्जाम में भी इसी तरह होगा कि आपको 2-5 मिनट के रोल ये प्लेइंग आएंगे कार्ड, उसको आपने 2 मिनट पढ़ना है, उसके बाद आपने जो आपका एग्जामिनर है उससे क्वेश्चन पूछने हैं और उसके जो वो क्वेश्चन पूछेगा उससे आंसर देने हैं। तो ट्राई टू सिमुलेट दैट, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे स्पीकिंग उतना आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर लेंगे। राइटिंग में आई वुड सजेस्ट के द बेस्ट सोर्स वुड बी, मैंने यूज की थी बेंचमार्क एजुकेशन की ना एक सब्सक्रिप्शन है, ऑलमोस्ट आई थिंक $10 की। तो दे गिव यू, दे बेसिकली आस्क यू टू सेंड यू योर लेटर्स। तो बेसिकली यू हैव गॉट रेफरल लेटर्स, डिस्चार्ज लेटर्स एंड अदर लेटर्स। तो ज्यादा ये वो वाला सेक्शन है जिसमें अक्सर जो लोग हैं उनके पॉइंट्स लूज होते हैं, उनका ओईटी बेसिकली एक तरह से उन्हें दोबारा देना पड़ता है। तो आई थिंक $10 की उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी ठीक है, और मैंने भी ली थी। मैंने इनको रोज का एक ऐसे हफ्ते में भेजना शुरू कर दिया था। उसका मुझे फायदा ये हुआ था कि मुझे मेरे फर्स्ट जो 2-3 लेटर्स थे उन्होंने मेरी मिस्टेक्स भी बता दी थी। तो उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट 2 से ट्रीट किया तो उन्होंने मैंने इम्प्रूवमेंट शो कर दी थी। तो मुझे ये पता चल गया था कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ और मैंने किस जगह पे इम्प्रूव करना है। तो दैट वाज रियली हेल्पफुल इन माय 1 week prep ऑफ ओईटी, और उसी की वजह से मेरे बेसिकली जो ग्रेड्स है वो ओईटी में अच्छे आ गए थे। बेस्ट टाइम जो है ओईटी देने का ना वो ड्यूरिंग स्टेप 2 prep है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप स्टेप 2 सीखे देते हैं उसका एग्जाम का रिजल्ट आता है, फिर आपने ईसीएफएमजी सर्टिफाई होना होता है। तो ईसीएफएमजी की सर्टिफिकेशन में एक रिक्वायरमेंट जो है वो ओईटी की आपके ग्रेड बी आना चाहिए ऑलमोस्ट आंसर सारे सेक्शन में। तो जब आप स्टेप 2 के दरमियान प्रेप के दरमियान में दे लेते हैं तो आपको यही वेट करना पड़ता है कि मैंने स्टेप 2 का रिजल्ट आया तो अब मैंने ओईटी की तैयारी शुरू करनी, फिर एग्जाम देना, फिर 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आएगा। तो आप ओईटी स्टेप 2 के दरमियान में दे देते हैं, तो जैसे स्टेप 2 का रिजल्ट आता है आप साथ ही ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपका नेक्स्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स में ईसीएफएमजी सर्टिफिकेट आ जाता है, तो आपका टाइम नहीं इसमें जाया होता। स्टेप 3 जो एग्जाम है ये यूएस में सिर्फ कंडक्ट होता है, और 2 डे एग्जाम है। 2 days एग्जाम है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। स्टेप 2 सीखे, जो स्टेप 3 है ये बेसिकली बिल्ड ऑन द नॉलेज ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सीखे। So, if you have done well step 1 and step 2 सीखे, that would help in getting good for the step 3. Day 1 में 232 MCQs होते हैं। Day 1 is like you can say step 1 and biostats and ethics portion. सो एग्जाम का ऑलमोस्ट 20% जो है वो बायोस्टैट्स होगा, और कुछ का ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन एथिक्स और कम्युनिकेशन साइंस पे होगा, और कुछ इसमें चीजें ड्रग एड्स और ड्रग एड्स जो आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट्स। तो आई वुड से द सेम एज आई सजेस्टेड यू इन स्टेप 2 सीखे उनको लास्ट पे करना है, उन पर टाइम बहुत ज़्यादा होता है और आपके बाकी जो क्वेश्चन है वो रह जाते हैं।
तो उनको लास्ट पे करना है, अगर टाइम नहीं मिल रहा तो उनके एटलीस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क जरूर कर दें, खाली नहीं छोड़ के आना। स्टेप थ्री आप स्टेप टू का जो थ्री का जो डे टू है उसमें आपका जो नॉलेज बेस्ड है वो सीके का नॉलेज, स्टेप टू सीके का नॉलेज यूज होता है। और जो इसमें जो मेन चीज है जो हर बाकी दोनों स्टेप से डिफरेंट है वो सीसीएस केसेस हैं। तो सीसीएस केसेस आर लाइक कंप्यूटर सिमुलेशन केसेस हैं। वो आपको एक रियल क्लिनिकल सिनेरियो पेश करते हैं कंप्यूटर पे, और आपने उसको टैकल करना होता है कि जिस तरह पेशेंट प्रेजेंट किया, मैंने इसका क्या लैब्स करानी, क्या वाइटल्स हैं, मैनेज किस तरह करना है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो ये सारा आप कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं। तो ये सीसीएस केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेप थ्री सीके, दे कैन रियली मेक और ब्रेक योर स्कोर। स्टेप थ्री देना क्यों चाहिए? एक तो ये कि स्टेप थ्री सीके जो है आपका H1B वीजा जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने स्टेप थ्री सीके दिया हो। एंड सेकंड जो चीज है वो ये कि कुछ प्रोग्राम फ्री मैच होते हैं, वो आपको मैच से पहले, रेगुलर साइकिल से पहले आपको ऑफर कर देते हैं कि हम आपको मैच दे रहे हैं। तो उनकी अक्सर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने स्टेप थ्री सीके स्टेप थ्री दिया हो, एग्जाम दिया हो। और द नंबर थर्ड थिंग वुड बी द मैच अपॉर्चुनिटीज। मैच जो प्रोग्राम्स हैं वो ये देखते हैं कि लोग बच्चों ने स्टेप थ्री दिया हुआ है कि नहीं। उसका फायदा ये होता है कि उन्हें ये नहीं देखना पड़ता कि ये जब हमारे प्रोग्राम में आएगा तो इसको दोबारा ये स्टेप थ्री देगा, उसमें नंबर कितने आएंगे, पास होगा भी या नहीं। तो उनकी एक ये वाली टेंशन खत्म हो जाती है कि स्टेप थ्री सीख के इसने दिया हुआ है तो इसके स्कोर अच्छे हैं, तो ये रेजिडेंसी में ही विल डू वेल। स्टेप टू थ्री सीके देने का जो बेस्ट टाइम है ना, स्टेप वन टू के बाद विद इन 2 से 3 मंथ देने का है। आपकी जो स्टेप टू की प्रेप है ना, स्टेप थ्री सीके में बहुत ज्यादा काम आएगी। जितना आप ज्यादा गैप रखते जाएंगे ना स्टेप वन और टू में और विद इन स्टेप थ्री, तो उतना ज्यादा आपका टाइम ज्यादा लगता जाएगा स्टेप थ्री की प्रेप में। यूवर्ल्ड इज द मेन सोर्स ऑफ स्टेप थ्री। इसमें से आपने सिर्फ यूवर्ल्ड के एमसीक्यूज करने हैं, यूवर्ल्ड की सीसीएस केसेस करने का फायदा नहीं। वो आपको आपकी असेसमेंट नहीं बताते कि आपने जो परफॉर्म किया सीसीएस केसेस में, उसमें एक्चुअली आपने उसमें आपकी गलतियां क्या थी, आपने ठीक क्या किया, आपने गलतियां किया। एम्बॉस कुछ चीजों के लिए स्टेप थ्री में बहुत जरूरी है और ये लाजमी करना है आपने स्टेप थ्री में ना। एम्बॉस से रिस्क फैक्टर, प्रोग्नोसिस और स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन ये लाजमी आते हैं। आपने जस्ट एम्बॉस की सर्च लाइब्रेरी में प्रोग्नोसिस लिखना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है उनके प्रोग्नोसिस देखने हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अब इस तरह के आने शुरू हो गए हैं कि वो कोई भी डिजीज पूछते हैं और उसमें से उसके बाद वो पूछते हैं कि इस पेशेंट की हिस्ट्री में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने इसका प्रोग्नोसिस बुरा बना दिया है, या ये कि इस पेशेंट की डिजीज में कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इसका प्रोग्नोसिस गुड है। तो प्रोग्नोसिस और रिस्क फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेप थ्री एग्जाम। बायोस्टैट सेम वही है, यूबर्ट और रैंडी हिल की वीडियोस आप करेंगे, आपकी स्टेप थ्री की बायोस्टैट कवर हो जाएगी। फर्स्ट एड में से कुछ टॉपिक्स आपने करने स्टेप थ्री में से ये आने हैं आपको। फार्माकोलॉजी जो है वो नंबर वन थिंग है, इसमें से आपको ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएंगे और डिफरेंट ड्रग्स की वो पूछेंगे इनके साइट ऑफ एक्शन क्या है। नंबर सेकंड थिंग वुड बी माइक्रोबायोलॉजी। वो आपसे डिफरेंट बेसिकली डिजीज पूछेगा, उसके बाद पूछेगा व्हाट बग इज कॉजिंग दिस डिजीज, और उसमें से वो ये इतनी डायरेक्ट पूछेगा कि व्हाट बग इज कॉजिंग, वो पूछेगा उसकी ग्राम स्क्रीनिंग पे या कल्चर पे क्या मिल रहा है। तो वो आपने जो अगर स्टेप वन की फर्स्ट एड है उसके अगर आप सिर्फ माइक्रो का सेक्शन पढ़ देंगे तो आप ये टॉपिक जो है अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। CCS केसेस आर ऑलरेडी सजेस्टेड। CCS केसेस आपने ccs.com से करने हैं, यूवर्ड से नहीं करने। CCS केसेस जो हैं वो और ccs.com पे 170 दिए हुए हैं, लेकिन आई वुड से कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड करें, दैट वुड बी इनफ फॉर योर एग्जाम एंड ऑलमोस्ट सारा एग्जाम से कवर हो जाता है। और ट्राई टू एक्लिमेटाइज योरसेल्फ विद दिस एग्जाम सॉफ्टवेयर। सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि जब आप स्टेप थ्री के एग्जाम देने जाते हैं और स्टेप थ्री के सीसीएस केसेस देखते हैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो सीसीएस केसेस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो फ्री 137 नाम से क्वेश्चन है और सॉफ्टवेयर है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा स्टेप थ्री के लिए, तो वो आपने देना है। तो वो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह आना है एग्जैक्टली जो कंप्यूटर सिमुलेशन केस है। और स्टेप टू के लिए स्टेप थ्री के लिए आइडियली आई वुड से कि 2 मंथ्स इनफ है अगर आपने स्टेप टू रिसेंटली दिया हुआ है। सीसीएस केसेस आपने थॉरली करने हैं, ये आपका स्कोर अच्छा और बुरा जो मेजर उसका फैक्टर है उसमें सीसीएस केसेस हैं, तो आपने सीसीएस केसेस अच्छे करने हैं। इवन यू इफ यू हैव टू डू ट्वाइस फ्रॉम द ccs.com यू हैव टू डू दैट। समरी ये है कि स्टेप वन जितना जल्दी हो सके दे दें एमबीबीएस में भी, फाइनल ईयर में भी। लेकिन एक ये चीज ध्यान रखनी कि स्टेप वन पास फेल हो गया, पीपल आर नॉट गेटिंग फेल्ड एट इट, लाइक अब फेल रेशियो ज्यादा हो गई है। उसकी वजह है कि लोग इस एग्जाम को सीरियस नहीं ले रहे।
ये बेसिक्स हैं, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटमी, ये आपकी आगे स्टेप 2 में भी काम आनी, स्टेप 3 में भी, इवन आपकी क्लिनिकल नॉलेज में भी आगे काम आनी है। और क्लिनिकल रोटेशन में भी आपसे जो अक्सर चीजें पूछ रहे हैं, स्टेप 1 का नॉलेज पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी बिहाइंड दिस, व्हाट इज पैथोलॉजी बिहाइंड दिस। स्टेप 2 सीके में आई वुड से कि ट्राई टू गेट स्कोर अबाउट 250। मैथ्स में उन्होंने कुछ फिल्टर्स लगाए होते हैं प्रोग्राम्स ने, जिनमें एक बहुत बड़ा फिल्टर अक्सर यही होता है, जो वो आपको बताएंगे नहीं लेकिन होता है नॉर्मली, कि एग्जाम में इनके स्कोर्स कितने हैं, तो एटलीस्ट ट्राई टू गेट अबाउट 250। ओटी में आई वुड से कि टाइम इट विद स्टेप 2 ड्यूरिंग प्रेप दे दें, ताकि आपका ECFMG सर्टिफिकेट डिले ना हो और आपका एक्स्ट्रा टाइम ना लगे। स्टेप 3 वैल्यूएबल एड ऑन है आपकी CV में भी, आपकी मैथ अपॉर्चुनिटी में भी, आपकी मैथ साइकिल में भी। प्रोग्राम्स जो हैं वो अब कुछ प्रोग्राम्स इवन कहना शुरू हो गए कि आप स्टेप 3 दे दें अगर आप क्लिनिकल रोटेशन चलने गए हैं US। और अंडरस्टैंड दी टॉपिक्स फॉर बेटर क्लियरेंस, और आपका आगे लॉन्ग टर्म ही चलना है, बजाय इसके कि आप मेमोराइज करें टॉपिक्स को। वीकली सेल्फ इम्पोर्टेंट वीकली सेल्फ असेसमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। दे हेल्प यू कि आप किस एरिया में वीक हैं और आप उस एरिया को आप अपना मुख्तलिफ रिसोर्सेज से या इवन के स्टेप 2 यूवर्ट से भी आप अपने आप को उसमें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, दोबारा उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके। और कंसिस्टेंसी इज द की। कुछ टाइम आएगा आपका एग्जाम प्रिपरेशन में भी, मैथ साइकिल में भी, और पेपर देते हुए भी आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे मतलब बस की बात नहीं है कि मैं तो नहीं कर सकता ये, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। कुछ डेज बैड गुजरेंगे प्रेप में भी, एग्जाम में भी, लेकिन आपने इसमें कंसिस्टेंट रहना है और ट्राई टू गो थ्रू इट। वो जो टाइम पीरियड है वो आपने पास करना है किसी तरह, और आगे कोशिश करते रहना है, इसमें कंसिस्टेंट रहना है अपनी ये मैथ जर्नी पर, मैथ रिलेटेड। So, thank you for having me here. Any questions for me?